everyone, this is Nivedita Singh and I heartily welcome you all in this series of factorization. This is factorization part 3, and if you have not seen factorization part 2 and part 1, please check it in the description box below and please give it a thumbs up if you like it. So let's start the video, that is factorization part 3. Yes friends, in the previous videos I have told you that what are the methods of factorization. The first method I have told you was taking out common. The second was grouping method. Third one was middle term splitting method. Now in this one we will read about difference of two squares. For example, if you are given two terms whose square are done, for example if the term is like a square minus b square, this is the difference of two squares, then how you will solve this question? You have to use here the formula, that is a square minus b square is how much? A plus b into a minus b. Okay, so by using this formula you have to solve the questions related to a square minus b square. So I'll show you some examples and I'll let you know how to solve this question. Yes students, let's take the first question. Here the question is 4a square b minus 9b cube. Okay, then the first step you have to do is you have to take out common if there is any. Then in these two terms, can you see anything common? I can see. What is the common? The common is b. Okay, so we can take out b as common and the remaining letters, the remaining term will be how much? 4a square minus 9b square. Okay, as I have taken out 1b common, so here it will be b square. Now next you have to convert this in the form of a square minus b square. Then what you will do, here b will be written as b only. Now see, this 4a square, this is already squared. So after taking out the square root, can we write this 4a square as 2a whole square? Whole square of 2a, can we write it like this? Yes, we can. Because if you square this, 2a square is how much? You are getting 4a square only. Okay, so this 4a square can be written as 2a whole square minus 3. See this 9b square, can we write this as 3b whole square? Yes, we can. Why? Because 3b whole square you are getting how much? The answer you are getting is 9b square. Okay. Now next, this is in the form of a square minus b square. So after expanding this one, we will write it as a plus b into a minus b. So here you will write here b into a plus b means 2a plus 3b into 2a minus 3b. Okay, and this will be the only final answer. No further steps. So this is how you have to solve using the formula, that is a square minus b square. Okay, let's see another question, children. So children, the next question is a plus b whole square minus 9c whole square. Now to solve this question, what you have to do, यहाँ पे आपको देखना है पहले that this a plus b whole square, this is already in the form of a square. Okay, but ये वाला 9c square जो है, this is square, ये square किया हुआ है, and you have to find what? You have to find the square root. मतलब ये किसका square होगा? So can we write 9c square as 3c का whole square? Because 3c का whole square you will get how much? You will get 9c square. Okay, तो हम लोग इस 9c square को कितना लिखेंगे? We will write it as 3c का whole square. So next step, what you will do, here you will write here a plus b whole square minus 3c whole square. Okay, now it is in the form of a square minus b square. That means after expanding a square minus b square, what you will write? A plus b into a minus b. That means we will write here a plus b means a, this is complete, this complete is first term, that means this complete is a plus b into a minus b, that is a plus b minus 3c. Okay, this is how you have to solve this question. If it is already squared, मतलब अगर पहले से यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तुम लोग को कुछ नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे. अगर वो पहले से स्क्वायर किया हुआ है, दैट इज 9c स्क्वायर, देखो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पहले से स्क्वायर किया हुआ है या नहीं है. अगर ये इस फॉर्म में लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे रहता 3c का होल स्क्वायर, इसका मतलब वो ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, पर यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ c के साथ स्क्वायर लिखा हुआ. दैट मीन्स ये क्या है,
ये स्क्वायर किया हुआ है, इसको आपको लिखना है किस फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, कि किसका स्क्वायर रूट है। तो ये 9c स्क्वायर जो है वो 3c का होल स्क्वायर करने के बाद आता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन चिल्ड्रन। Yes students, let's take one more question. Here the question is 16 into 2x minus 1 whole square minus 25y square. Now see, इस 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, इसका स्क्वायर रूट आता है 4. Now see, 2x minus 1 का होल स्क्वायर, ये वाला सिर्फ ये वाला टर्म जो है वो तो a स्क्वायर के फॉर्म में है, बट टर्म जो है, टर्म मीन्स कंप्लीट टर्म वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक मीन्स 16 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये पूरा एक टर्म है। तो ये पूरा एक टर्म को आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। सो व्हाट वी कैन डू इज 16 को वी कैन राइट इट एज 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। सो 16 की जगह पे लिखे 4 और यहाँ पे सेम नंबर लिखे 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। कैन वी राइट इट लाइक दिस, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यू विल गेट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे 25y स्क्वायर, तो 25y स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, कैन वी इसको b स्क्वायर के फॉर्म में, सो दैट पूरा स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, वी विल राइट एज 5y का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म्स में, तो हम लोग इसको एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी मीन्स कितना, a प्लस बी, a मीन्स 4 इंटू 2x माइनस 1, ये हुआ a प्लस बी मीन्स 5y, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखना है इसमें, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2x माइनस 1, ये हुआ a माइनस बी दैट इज 5y। ओके, दिस वन। पर क्या ये आंसर है, ये आंसर तो है बट इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम लोग को थोड़ा और ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट यू विल डू हियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 टू ज़ हाउ मच, यू विल गेट 8। सो हियर यू विल राइट 8x माइनस 4 प्लस 5y, ये हुआ एक टर्म, एंड द सेकेंड टर्म इज 4 into 2 that is 8, so we will write the 8x minus 4 minus 5y. Okay, 4 into 1 that is minus 4. So this is the final answer which you will get after solving this question. Now see, यहाँ पे 16 2x minus 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या किए, इसको सिंपली ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अगर सिर्फ दो टर्म है और दोनों टर्म अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है तो हम लोग उसको किसी भी तरह से वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, सो जस्ट लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन चिल्ड्रन. Yes students, let's take one more question. Here the question is a square minus b square plus c square minus 1 plus 2b minus 2ac. Now ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसको हम लोग को किस फॉर्मेट में करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में करना है. तो ये कैसे होगा. नाउ सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको. नाउ सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 2ac. क्या हमने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर का? डू वी नो दैट? यस, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. नाउ अगर हम इन तीनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड द रिमेनिंग टर्म दैट इज b स्क्वायर. ये माइनस बी स्क्वायर को एक साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं. ओके, नाउ सी द फर्स्ट थ्री टर्म्स. इन तीनों को देखिए आपको क्या लग रहा है, इसको ये किस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है. ओके, ये किस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म, b मतलब सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म इज c. तो लिखेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सॉरी आई हैव नॉट रिटन हियर b स्क्वायर, इट विल बी b स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ पे b माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b. क्या इसको भी हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यस वी कैन. हाउ? सी,
यहाँ बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, व्हाट यू हैव रेड द फॉर्मूला इज, द फॉर्मूला इज ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए स्क्वायर हुआ, ये 1 क्या हुआ हमारे पास, बी स्क्वायर, और 2b मतलब 2 इंटू बी इंटू 1, ओके। तो 2 इंटू बी इंटू 1 दैट मीन्स क्या हो गया 2ab। सी व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग पहले इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, -1 को, ओके। जब -1 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ बचता है बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, ओके। नाउ अब इसको ध्यान से देखिए, क्या अब ये फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में, यस इट इज। यहाँ ए बी नहीं दिख रहा है, 2 टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 2 टर्म नहीं है, यहाँ है। कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म 1, एक 2 है, दूसरा b है, और थर्ड टर्म क्या है 1, ओके। सो नाउ ये वाला सेम कैरी डाउन होगा, और इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ अगेन दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अभी आ गया है। तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स वी राइट हियर a मीन्स पूरा वाला a माइनस सी प्लस दिस वन b माइनस 1, ओके। ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज व्हाट, सेकेंड टर्म इज b माइनस 1, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबका साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज एंड द सेकेंड टर्म विल बी हाउ मच, a माइनस सी माइनस b प्लस 1, ओके। ये होगा हमारा सेकेंड टर्म। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, एंड दिस इज द ओनली फाइनल आंसर, और कोई स्टेप्स इसमें नहीं रहेगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का है तो हमारे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कहीं 2ab या a स्क्वायर या b स्क्वायर मिल रहा है तो हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, आपको सभी फॉर्मूला को एक दूसरे से रिलेट करके चलना पड़ेगा। जो बेसिक फॉर्मूला है that you have to relate and you have to solve the question, okay। So thank you students for watching this video. I hope you have liked this video and you have understood that how to solve the questions related to this pattern, that is a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. And there is one more video children, so please don't miss that, and if you have not seen the rest of the part of this factorization, please check the description box below. So thank you.